Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swamin Idinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So welcome to all of you for today's Bhagavad Gita session. So today we'll be continuing with the 15th chapter. The 15th chapter, the name of 15th chapter is the Yoga of the Supreme Person. Hindi में पुरुषोत्तम yoga. So some insights about Krishna. Krishna himself is giving and insights about his Paramdhama, Goloka. Krishna is giving us all in this chapter. तो इस अध्याय में कृष्णा अपने बारे में और परम धाम के बारे में, अपने परम धाम के बारे में वो सबको एक क्या बोलते हैं किरु परिचय, एक छोटा सा परिचय दे रहे हैं. इज गिविंग अ preliminary introduction to all of us. So last class we talked about the conclusion of last class was that the supreme abode can be achieved only by surrender and by no other means. परम धामा कृष्णा, कृष्णा भक्ति और कृष्णा का धाम कैसे हम पाएंगे? वी कैन अचीव इट ओनली बाय सरेंडर. शरण, कृष्णा के शरण में जाने से, कृष्ण के भक्तों के शरण में जाने से, शुद्ध भक्तों के शरण में जाने से हमें कृष्णा, कृष्ण प्रेम, कृष्णा को सेवा करने का मौका और कृष्णा का धाम ये हमें मिलेगा. So now Krishna is talking something about why Prabhupada tells Krishna consciousness is the only way of universal brotherhood. कृष्णा भावनामृत में सब आएंगे तभी ये भ्रातु बांधव्य पूरे विश्व में आ सकता है, वरना ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, लगभग वर्ल्ड वॉर 3 चल ही रहा है. अब तो 6-7 कंट्रीज वॉर्स में हैं. तो around 6 to 7 countries are at war, and many other countries supporting from behind to one country or the other. तो लगभग तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका और प्रभुपाद जी ने बोला है कि तीसरा विश्व युद्ध तो होगा. और प्रभुपाद जी ने ये भी बोला था एक एक मुद्दा तीसरा विश्व युद्ध का ये होगा पानी के लिए. तो वो दिन दूर नहीं है. भगवान ना करे कि ऐसा हो, एटलीस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, as long as it can be averted. But the conditions of the world we are seeing that things like this cannot be averted. They are going to increase and escalate. 40, I think 42, 45 was the first World War. There's the Second World War. Slightly before that, the First World War. So in the span of just 100 years, the Third World War, less than 100 years. 80 सालों में Third World War की लक्षण सब आ गया. So the only way of universal brotherhood is by considering Krishna as our supreme father. And it's not a question of consideration, क्योंकि कृष्णा अभी बोल रहे हैं. We will read this very famous shloka, and that is spoken by Krishna himself. Mamaivamsho jiva loke jiva bhutah sanatanah manashastani indriyani
prakriti sthani karshati. What is the meaning of this sloka? The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. जो इस भौतिक जगत में जीव है, ये भी मेरे अंश है। और अंश कैसे अंश? तत्काल के अंश नहीं, सनातन। मतलब हमेशा हम कृष्णा के ही अंश है। अभी भी हम कृष्णा के ही अंश है, बाद में भी हम कृष्णा का अंश ही रहेंगे। इससे पहले भी हम कृष्णा के अंश थे। तो ममैवांशो जीवलोके, इस लोक में सारे जो जीव हैं, जो भी जीव का लोक है, जीवभूतः, यहाँ के सारे जीव सनातन रूप से ममैवांशो। सो दैट Krishna is categorically declaring, you, me, everybody else who's listening and not listening, who are at the war right now, Mamayivamsho. They're all part and parcels of Krishna. Some of them have fully forgotten Krishna. Some of us have partly forgotten Krishna. Some of us are in the process of remembering Krishna. And some people have already remembered Krishna and done the necessary change in their life. But due to conditioned life, Prakriti Sthani, because of being on the platform of conditioned life, they are struggling very hard with 6 senses. Shashta Indriyani. षष्ठ इंद्रिय कैसे हो गया? 6 इंद्रिय कहां से आ गया? हमने तो सुना था 5 इंद्रिय होते हैं, पंचेंद्रिय। तो कृष्णा इज क्लैरिफाइंग, मन षष्ठ इंद्रिया, षष्ठानी इंद्रिया। मन को अगर हम गणन करेंगे तो 6 इंद्रिय हैं। तो इन इंद्रियों के साथ, मन के विचलित मन के साथ, इंद्रियों के साथ, उत्तेजित इंद्रियों के साथ प्रकृति स्थानी कर्षति। दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड in this material world due to their engagement with the 6 senses. So why are we all struggling? Because we're completely disconnected with Krishna. क्योंकि हम कृष्णा से दूर हो चुके हैं और 6 इंद्रियों का विकार से और उसमें उलझने से हमें इस भौतिक जो स्ट्रगल है उससे गुजरना पड़ रहा है। Krishna never says that don't enjoy. Krishna says there are ways of enjoying. And I have given you regulated principles and ways of enjoying, and in that boundaries you can enjoy. कृष्णा कभी ये नहीं बोल रहे आपको मौज मस्ती नहीं करना है, आनंद नहीं लेना है। कृष्णा इज टेलिंग देयर आर वेज, गति विधान है, कुछ नियम है। उस नियम के बंदिशों में अगर हम हमारे सुख को ढूंढेंगे, भौतिक सुख को, क्योंकि आध्यात्मिक सुख तो अपरिमित है, उसके लिए कोई बंदिशें नहीं है। तो जो कृष्णा बात कर रहे हैं वो भौतिक सुखों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम भोग सकते हैं, लेकिन हमारे हिस्से में जो है उसको भोगना है। हमें जितना मात्रा में भोगना है जिससे हम कृष्णा को नहीं भूलेंगे या कृष्णा को याद करना मुश्किल होगा, उतनी मात्रा में हमें दायरे में रह के हमें भोगना है। And we have to come to stage where slowly we have to give up material enjoyment, tendency to material enjoyment, and completely situate ourselves in spiritual platform. आध्यात्मिक स्थानीय बनना है हमें। अभी हम प्रकृति स्थानीय, कर्षति, we are struggling. तो in आध्यात्मिक स्थान will become what is it? आनंदमय अभ्यास. That will be our default position, always blissful. So this is the secret. We all are searching for happiness. हम सब खुशियां, आनंद को ढूंढ रहे हैं। कहाँ मिलेगा? कृष्ण के चरणों में, उनकी सेवा में। This secret, if we understand, then nobody has to tell us, do service, come to temple, साधना करो, हरे कृष्ण मंत्र जपा करो। ये किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भक्तों के संग में रहो, मंदिर में सेवा करो, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वक्त दो, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। So the auto, this one, understanding will happen. But yes, with guidance, we have to do everything. So we will go ahead with the purport of this particular shloka, Bhavartha.
The living entity is the fragmental part and parcel of Supreme Lord eternally. So Prabhupada is reinforcing this statement of Krishna. Mamaivaamsha jiva loke jiva bhuta sanatanaha. Forever, always, we are all part and parcel of Krishna. हम सब कृष्ण का अंश हैं हमेशा हमेशा के लिए. ऐसा नहीं कि पूर्व में हम नहीं थे, पूर्व में भी थे, अभी वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे. He is eternally fragmented, although हम कृष्ण से अलग हैं. So that is what is the अचिंत्य भेदा भेदा, जो हमारा तत्व है. तो हमारा जो our philosophy अचिंत्य भेदा भेदा, simultaneously one and different. We are part and parcel of Krishna, so we are one. But at the same time we are individuals, so at the same time we are different. Achintya bheda abheda, like the son is part of the mother only. उनके अंदर से ही आया. In fact, all the flesh, blood, whatever he has, was given to him by the mother herself. माँ ने बच्चे के लिए सब कुछ दे दिया. मांस रक्त सब दे दिया. पिता का कुछ योगदान है. But virtually he is a part of that son, or a daughter is a part of that mother. पुत्र या पुत्री माता का अंश ही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक अलग इंडिविजुअल है. वो माँ है और ये पुत्र है. बट पुत्र कहाँ से आया? माँ के अंदर से, माँ का पोषण से. वर्चुअली बीइंग ए पैरासाइट ऑफ द मदर, द चाइल्ड grew inside her womb, and after he came out also, mother had to virtually take care of the child with the help of the father to some extent. And mother had to devote her full time for the child. So the child is parasiting upon the time of the mother, the energy of the mother. तो माता के ऊपर निर्भर शिशु आज भी हम सब, आप सब इन योर केस, आपके माता पिता पे निर्भर हो for some emotional support, if not for financial support. We all feel secure being with our parents. Most of us in Kali Yuga. For some unfortunate people like me who lost mother very early and father sometime later in the life, we have lost that shelter. Otherwise, having my mother and father, the shelter of them is always a blissful experience. So many of you are fortunate to even now experience it. So like that, कृष्णा इज अवर एटर्नल फादर, मतलब हमारे पिता के पिता के पिता है. इसलिए बोलते हैं पिता महा भी है वो. सो इज एवरीथिंग. माता दाता पितामह. तो दाता इज आल्सो द गार्डियन. पितामह, ग्रैंडफादर, व्हाटएवर एक्सटेंट यू वांट टू गो बिहाइंड, ही इज दैट. सो इट इज क्लियरली सेड सनातनः. जो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस. द प्राइमरी एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा आर कॉल्ड विष्णु तत्व, and the second expansions are called living entities. कृष्णा के दो क्या बोलते हैं विस्तार है, एक विष्णु तत्व, एक जीव तत्व. हम जीव तत्व कैटेगरी में आते हैं. वी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जीव तत्व. एंड विष्णु एक्सपेंशंस, the Vishnu, the different types of Vishnu, the Chaitanya Mahaprabhu and the followers, they all come under the Vishnu tattva up to Advaita Acharya. And the living entities are separated expansions, while Vishnu Tattva is the personal expansion. Vishnu Tattva स्वाम अंश है, मतलब एक एक्सपेंशन है, विस्तार है. और हम जीव अंश सेपरेटेड एक्सपेंशन से, हम अलग हो चुके हैं कृष्णा से, इंडिविजुअल से. The separated expansion living entities are eternally servitors. और ये जो भेद हुए हैं जीव, कृष्ण से अलग हुए हैं, वो सनातन रूप से कृष्णा के दास हैं. जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास. ये हम सबकी आध्यात्मिक सांविधानिक स्थिति है. The personal expansions of the supreme personality of Godhead, the individual identities of the Godhead are always present. तो भगवान के सारे अंश हमेशा नरसिम्हा रहते हैं. नरसिम्हा हमारे मतलब समक्ष अगोचर रहते हैं, लेकिन हमेशा नरसिम्हा रहते हैं.
हमेशा विष्णु जी है, सारे विष्णु फॉर्म्स है। रामा इज ऑलवेज देयर, Chaitanya Mahaprabhu is always there, Advaita Acharya is always there, Nityananda Prabhu is always there. Not that their function is over now, now they are no more there. They are always there in their spiritual planets. So they are their eternal expansions and they remain as the eternal the components. Every living entity has an individual soul, his individual personality, and a minute form of independence. If this comes, here comes Achintya Bheda Abheda. Dependent on the Lord, but minute independence is there. Krishna is giving us instructions and choices also. ये करने से ये होगा और ये करने से ये होगा, अब आप चूज कीजिए। तो पूरे भगवत गीता का बोधन करने के बाद अंत में 18वें अध्याय में कृष्णा अर्जुन को बोलेंगे कि नाउ आई हैव टोल्ड यू व्हाट एवर ऑप्शंस आर देयर, नाउ यू डू एज यू प्लीज एज यू विश। तो कृष्णा इज स्टिल नॉट टेकिंग अवे द इंडिविजुअल चॉइस ऑफ अर्जुन। कृष्णा अर्जुन के जो निर्धार है वो उसको उनके ऊपर ही छोड़ रहा। ही इज नॉट टेकिंग अवे हिज फ्रीडम। चलिए यू स्टिल हैव अ चॉइस। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपको करना है, आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन आप मना करेंगे तो ये होगा। सो ही हैज गिवन द रिपरकशन ऑफ नॉट डूइंग आल्सो एंड ही हैज गिवन द actions and reactions of when he does something, what will happen when he fights this yuddha, why it has to be fought. He has already explained, he has already told Arjuna if it doesn't fight what is going to happen. तो कृष्णा ने अर्जुन को सब कुछ समक्ष में बता दिया, आप युद्ध लड़ेंगे तो ये होगा, तो इसका ये क्या होता है रिएक्शन होगा, ये प्रभाव होगा, और अगर आप युद्ध नहीं लड़ेंगे तो ये होगा। इंडिविजुअली आपके साथ ये होगा और कलेक्टिवली सबके साथ ये होगा। कृष्णा हैज वेरी साइंटिफिकली एक्सप्लेन। सो हाउ कैन पीपल एथिस्ट से दैट भगवद गीता एंड लॉर्ड्स वे आर autocratic and unscientific? Krishna is giving the knowledge, Krishna is giving the choices, Krishna is explaining about the choices, and Krishna is leaving the choice to the listener. So how can he be called as an autocrat? तो सब बोलते हैं भगवान तो सब मतलब अपना जो चाहिए वो काम कराता है। No, it is not like that. Krishna will always give us choices. सो हमारे जिंदगी में भी चॉइस है, हम 16 माला कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। So nobody is going to hold your neck and make you do it. No preacher will do that because we are followers of Krishna. We will give you instruction, but we will not hold your neck and dunk you and make you do something. आपको जबरदस्ती हम कुछ भी नहीं कराएंगे। जबरदस्ती किसी को कुछ भी नहीं करा सकते हैं। हर इंडिविजुअल का अपना चॉइस होता है। Nobody can be forced to do something. है ना, ये कंसा रावणा हर्डिंग पीपल टुगेदर और जान की धमकी देके कराना वो दूसरी बात, लेकिन एक कृष्ण भक्त, एक आचार्य, एक preacher, he will never force anybody to do anything because anything forced will be temporary. क्योंकि फिर जीव अपना मनशस्त्राणि इंद्रियाणि तो उस प्लेटफॉर्म में चला जाएगा। So only a soul who is ready to walk the talk and walk the path, he can be preached to and he can be made to do something. तो वही व्यक्ति को हम कुछ करा सकते हैं जो हमारा बोधन इंस्ट्रक्शन सुनने की लालसा रखता है या चेष्टा करेगा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो फर्दर हियर the living entity forgets the transcendental loving service of the Lord. Krishna bhuliya jiva bhogavancha kare. Why we are having this material form of life and material life and trying to enjoy the material life futilely? Because we forgotten Krishna. Why we forgot Krishna? Bhogavancha kare. We wanted to enjoy on our own. As a result, he has to struggle very hard to maintain his existence in the material world. For Krishna, enjoyment is a natural ability.
For us, enjoyment without Krishna is very unnatural. That is why जब 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 एक मछली पानी से बाहर जाता है वो फड़फड़ाता है, क्योंकि दैट इज एन अननेचुरल circumstance for it. तो हम फड़फड़ा क्यों रहे? Why are we struggling? Because this is an unnatural circumstance for us. We are not in our natural circumstances. We are not in the position of being servants of Krishna, and we are not with Krishna in his Goloka Dham. So that is why we are all struggling. So this seventh sloka also I want to go slow and in detail. The conditioned soul is bound up as though shackled by iron chains. तो जीवा जीवा को अनेक बंधन से बंधा गया है। माया ने संबंधों का बंधन, कार्य का बंधन, भोग वांछा का बंधन, ऐसे बहुत बड़ी बड़े बड़े लोहे के जो चेन्स होते हैं उससे हमें बांध दिया, और कुछ बंधन हमने खुद अपने ऊपर डाल दिया। जैसे कि वसुदेवा, जस्ट एनालॉजी, आई डिडंट नॉट कंपेयरिंग द रिलेटेड मटेरियल। वसुदेवा कृष्णा को यशोदा माता के पास छोड़ने के बाद वो वापस आया जेल में अपने आप, और अपने आप वो सारे जो आयरन चेन्स थे उन्होंने बांध दिए ताकि कंसा को पता ना चले कि वो बाहर गए थे। So he himself put all the chains back on him. In our case, like we read in the one of the sessions about Narottama Das Thakur, we talked about knowingly drinking poison. जानिया शून्य विषा कहेंगे, ये हम काम कर रहे हैं, जानबूझ के हमने अपने ऊपर सारे चेन्स डाल दिया, ये सोच के कि ये जरूरी है, ये नहीं होगा तो मैं नहीं होगा तो मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। सबका देखभाल भगवान ही करता है, बट दैट डजंट नाउ मीन दैट अच्छा सबका देखभाल भगवान कर रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, माता पिता हम अपने रास्ते देखेंगे। नो, एज फादर मदर, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी यू मस्ट डू योर ड्यूटी, बट वी मस्ट डू इट विद अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज पॉसिबल बिकॉज कृष्णा इज ब्लेसिंग मी एंड माई चाइल्ड। That is why both of us are able to benefit from it. Otherwise, it is not possible. Unless Krishna sanctions, a mother cannot take care of her child. And unless Krishna sanctions, the child cannot get the benefit of the mother. दोनों तरफ sanction होना चाहिए. So you see, even for an atheist, माँ का दूध पी के ही वो बड़ा हुआ है, तो माँ का दूध तो we can say वो माँ का दूध तो वो नेचुरल है, आ जाता है। Can you please explain me? I am a medical man. Till today we can only explain saying that हमने पढ़ा था हमने हमारे मेडिकल सब्जेक्ट्स में कि जब गर्भावस्था होती है उस समय तो दूध नहीं आता है, तो प्रसव होने के बाद बच्चा बाहर आने के बाद दूध निकलना शुरू हो जाता है कुछ समय के लिए, उस समय तक के उस बच्चे को माँ का दूध जरूरत है, उसके बाद गाय का दूध है, उसके बाद माँ को दूध नहीं आएगा। ये कैसे हो रहा है? सो साइंटिफिक एक्सप्लेन, हार्मोन्स होता है, हार्मोन रिलीज होता है। हम पूछ रहे हार्मोन्स कैसे रिलीज हो रहा है? ओके, वी आर एबल टू एक्सप्लेन दैट इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द हार्मोन। हार्मोन उस समय कैसे रिलीज हो रहा है, देह को पता कैसे चल रहा है कि अभी ये हार्मोन रिलीज करना है? हार्मोन तो बॉडी से आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं आ रहा है, ये शरीर ही प्रोड्यूस कर रहा है। All the hormones are being produced by this body. How does this hormone know, or how does the body know now that this hormone should be produced? How does it know the chemical formula? अगर मैं, आप में से बहुत सारे यहाँ पे माँ बैठे हैं, मैं आपको पूछूंगा आपके वो हार्मोन का केमिकल फॉर्मूला बताइए जिस हार्मोन से आपने दूध पिलाया अपने बच्चे को, बता पाएंगे आप? लेकिन आपने दूध पिलाया अपने बच्चे को, वो हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज हुआ कैसे आपको पता भी नहीं। तो कृष्णा हैज फैसिलिटेटेड दैट। वो हार्मोन नहीं है किसी, बहुत सारे माँ को दूध नहीं निकलता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आर्टिफिशियल वी कैन गिव सम हार्मोन्स एंड ट्राई टू इंड्यूस। लाइक अभी गाय, दूध के इंडस्ट्री में गाय को जबरदस्ती हार्मोन इंजेक्शन डालते हैं और अधिक मात्रा से दूध निकाल सकते हैं, लेकिन अगेन दैट इज नॉट मैन मेड। आप हार्मोन कहाँ से ले रहे हो? उसी गाय से ले रहे हो आप हार्मोन। हार्मोन का उत्पत्ति फिर ठीक है, केमिकली आपने प्रोड्यूस भी कर लिया, लेकिन उसका सारा जो पदार्थ है कहाँ से आया? आपने मैन्युफैक्चर नहीं किया ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपने मैन्युफैक्चर, आपको आप उसको उपयोग करके कुछ
फार्मूलाज में आप उसको उत्पत्ति कर रहे हो एंजाइम, बट द एंजाइम हैज टू एक्ट लाइक दिस, हु हैज डिसाइडेड? ये स्ट्रक्चर होने से ये फंक्शन होगा कैसे? सी, एंड दैट वी स्टडी इन साइंस। ये हम विज्ञान में पढ़ते हैं, विज्ञान की पुस्तक में पढ़ते हैं, बोलते हैं हम विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जिस विज्ञान से ये देह चल रहा है, जो चला रहा है, वो आध्यात्मिक गतिविधियों को हम बोलते हैं ये सब मन गढ़ंत कहानी है, सुपरस्टिशन है। अरे, यू आर टेलिंग अस दैट in medical science we are reading that this is due to hormone, this is having an explanation, this is scientific। तो जो मैकेनिज्म किया है भगवान ने, तो वो अनसाइंटिफिक कैसे हो गया? वो नॉन एग्जिस्टिंग कैसे हो गया? हाउ इज दैट पर्सन नॉन एग्जिस्टिंग? यू आर एग्जिस्टिंग, द फॉर्मूलाज आर एग्जिस्टिंग, द हार्मोन्स आर एग्जिस्टिंग, द फंक्शंस आर एग्जिस्टिंग, बट द वन हु मेड इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। हाउ इलॉजिकल इट इज। तो आपने लैब में कुछ उत्पत्ति किया तो आप बोलेंगे ना इसने बनाया, उसने बनाया। तो आपके देह में जो एंजाइम है किसने बनाया? कोई बोल सकता है कि मैंने बनाया? आपने बनाया तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बना। तो आपने नहीं बनाया, कैसे बना? आप बोल सकते सम पीपल के प्रकृति ने बनाया। अच्छा ठीक है, प्रकृति है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रकृति, देन दैट इज गॉड। ये तो मान लीजिए सम हायर पावर इज देयर दैट इज डूइंग दिस। But if we tell some unknown identity came into the laboratory and it had no form, तो and it mixed oxygen and nitrogen, ये सब हो गया, तो एवरी इवन बच्चा भी जानेगा कि ये मतलब फुलिश बात चल रहा। हाउ कैन somebody unknown, we can say that somebody came, we do not know who it is, we cannot say that the person who came didn't have form, वरना हम देखते हो उसको। किसी के घर में चोरी हो जाएगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि किसी को भी आप पूछ लीजिए कि चोर आके गया क्या है, वो बोलेगा हाँ चोर आके गया है, कौन सा चोर है ये पता नहीं। तो वी कैन से दैट yes somebody came and stole my whatever was stolen from the house। किसी किसी कोई चोर मेरे घर आके चोरी किया, ये हम बोल सकते। किसने किया शायद पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं चोरी हुआ है, लेकिन क्योंकि अगर कोई आता तो हमें तो दिखता, कोई चोरी करता तो हमें दिखता, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है तो he has no form। Can we conclude like this? It is so foolish. All of you are able to understand it is so foolish when somebody speak like this. And every atheist, every so-called scientist who speaks like this, there is no God, it is all happening by nature, it is by accident। अब ये देखिए, one of the biggest theories, more popular theories of life, existence of life on earth, formation of earth was Big Bang theory। Then suddenly there was an explosion, there was no cause for it। How can it be like this? So actually whatever we learned now in our textbooks, the mechanisms are all right, but the conclusion saying that it happened like this, nobody knows, it happened automatically। We say it is written auto rhythmicity of the heart। हृदय अपने आप 72 बार घंटे में धड़कती है, कुछ लोगों में 60 बार, एथलीट्स lesser heart rate because they would have got attuned to it। So it is like saying मेरा मेरा हार्ट ऑटोमेटिकली धड़क रहा है, ठीक है, आपका वॉल क्लॉक भी ऑटोमेटिक ही चल रहा है, लेकिन वो मतलब ऐसे ही आ गया क्या? किसी ने उसको बनाया, किसी ने ऐसे सेट किया उसको कि वो ऑटोमेटिकली चलेगा। तो सिमिलरली देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग विच वी कॉल इट अ सो कॉल्ड ऑटोमेटिक, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो किसी ने सेट किया है, देन इट हैज बिकम ऑटोमेटिक। To say that a random event like Big Bang caused a very organized world। See, the sun is here, the the earth is here। आपको पता है अगर भूमि हमारे सौर मंडल में कुछ किलोमीटर सूर्य की तरफ जाएगा, भस्म हो जाएंगे। पहले तो विल बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द सन, भस्म हो जाएंगे, उससे जाने से पहले सब भस्म हो जाएंगे।
और अगर कुछ किलोमीटर्स वो इस तरफ सूर्य के दूर चला जाए तो टुवर्ड्स मार्स, फिर इट विल गेट absorbed, hit by asteroids and get sucked in Jupiter. And before that everything will become cold. सब शीतल हो जाएगा, सब हम सब बर्फ बन जाएंगे, जीव ही जी ही नहीं पाएंगे. Few kilometers this side and few kilometers. So Earth is in a perfect position. So Earth is in a perfect position. It is going around in an orbit which is very well decided. कितने दिनों में एक साल होता है? 365. कैसे एक साल हुआ? बिकॉज भूमि सूर्य के पूरा एक चक्कर काटता है 365 डेज में, वो एक साल बन जाता है. एवरी ईयर हैज 365 डेज प्लस some hours for which we have got some adjustments we have made. Can this happen by a random event? Random event creating a perfectly organized sub-event. So only a foolish person can think that it is possible. A organized thing can become disorganized. A disorganized thing cannot automatically become organized unless some superior intelligence intervenes. आप घर जाएंगे, सब अस्त व्यस्त है, 20 दिन नहीं थे घर में, अस्त व्यस्त हो गया, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना. ऐसा नहीं बोल सकते हम बाहर थे तो 15 दिन अस्त व्यस्त था, लेकिन आखिरी 5 दिन में अपने आप सारे अपने अपने जगह चले गए. दैट इज नॉट पॉसिबल. So I've spent a lot of time trying to reinforce this point. Okay, because these are the kind of points that the atheists will try to come and defeat us with. Further, we will read. So the spiritual body manifests in its individual capacity. The conditioned soul is covered by material body. कैसे हम आध्यात्मिक प्रगति कर पा रहे हैं? Because we are spiritual beings. क्योंकि हम आध्यात्मिक जीव हैं. जीव आध्यात्मिक है, भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर को चला रहा है आध्यात्मिक जीव, और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा बन के उसको शक्ति दे रहा है, इसलिए वो ये देह चल रहा है. केवल जीव रहने से जब हमारा देह नहीं चलेगा. सिंपली प्रेजेंस ऑफ सोल इज नॉट एनफ. देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सुपर सोल also which energizes the soul, and the energy of the soul is felt as consciousness. The body, we know, we are aware of ourselves. That is consciousness. That is because of the presence of us, the soul inside this body. But this power is given to us. Matta smritir gnanam apanam cha. जो भी शक्ति हमारे अंदर है, जानने का, बोलने का, और ज्ञान अज्ञान सारे कुछ भगवान की ही शक्ति है. सो अज्ञान भी एक तरफ भगवान का शक्ति है. कौन सा शक्ति? माया का शक्ति. वो भी एक शक्ति है, वेरी पावरफुल. तो अज्ञान भी एक पावरफुल शक्ति है, लेकिन वो शक्ति सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाता है, बिकॉज इट इज अनकंट्रोल्ड. इट टेक्स अस इन द रॉन्ग पाथ. सो द फ्रैगमेंटल पोर्शंस ऑफ कृष्णा वी आर ऑल्सो एटर्नल. सो इससे हम मायावादा को खंडन कर सकते हैं, उसको डिफीट कर सकते हैं. वी कैन डिफीट मायावादा फिलोसफी. इट सेज दैट लॉर्ड हैज नो फॉर्म, mama, and we all become God. We all get merged with the God. What is Krishna telling here? जिस भगवान के ऊपर आप ये बोल रहे हो, तो भगवान को बोल रहे हैं मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन. हमेशा के लिए आप इंडिविजुअल रहेंगे और मैं इंडिविजुअल रहूंगा, लेकिन आप मेरे पार्ट हो. तो नाउ कैन वी से दैट नो, कृष्णा गलत बोल रहे हैं, मुझे पता है, हम सब कृष्णा के अंदर चले जाएंगे, वी विल मर्ज. कृष्णा और हमारे बीच में अंतर नहीं रहेगा, हमें किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन कृष्णा है और कौन हम है, हम भी भगवान बन जाएंगे. इट्स अ वेरी क्रूड फूलिश आर्ग्यूमेंट इट विल बिकम. दैट्स व्हाई चैतन्य महाप्रभु सेज व्हेन अ मायावादी स्पीक्स, प्लीज क्लोज योर आईज एंड रन अवे. क्लोज योर ईयर्स एंड रन अवे. कान बंद करके दूर भाग जाओ, वरना आपको दूषित कर देगा. एंड दैट्स व्हाई चैतन्य महाप्रभु सेड मायावादीज आर ऑफेंडर्स. सुंदर रूप जो कृष्णा का है उसको बोल रहे रूप ही नहीं है. सो इट इज बिग ऑफेंस दैट दे आर डूइंग. सो फर्दर वी विल रीड. इन द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स एवरीवन लिव्स इन बॉडीज फीचर्ड लाइक द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड. हमारा शरीर भगवान जैसे होगा, लेकिन हम एक अलग आध्यात्मिक शरीर में रहेंगे, आध्यात्मिक लोक में भी.
लेकिन हमारा शरीर भगवान के शरीर की जैसा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन गए या हम ही भगवान हैं। The fragmental portion of the Supreme Lord is not like some material broken part. ऐसा नहीं कि गाड़ी का कुछ हिस्सा टूट गया तो गाड़ी अभी अधूरा हो गया, गाड़ी का पैर निकल गया, मतलब चक्र निकल गया। ये जो मर्सिडीज बेंज है, 3 टायर वाला मर्सिडीज बेंज हो गया, तो एक टायर मिसिंग है। इट इज नॉट लाइक दैट। जब हम सेपरेट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का एक टायर निकल गया। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। So the Lord is always going to be complete. Even when we, like मदर के अंदर से पुत्र निकला, अभी मदर क्या आधा हो गई? मदर इज नाउ हाफ ऑफ व्हाट शी वाज। नो। So crude example. So Krishna is complete always, and the Jiva is also in his spiritual sense is complete only. And when he gets his spiritual body back, he will show his completeness. This fragment is not materially conceived. It is not like matter which can be cut into pieces and joined together. तो आत्मा ऐसा नहीं कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा को हम खंडन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, उसको सुखा नहीं सकते हैं, पानी में से गीला नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट मेक इट वेट, वी कैनॉट ड्राई इट, वी कैनॉट बर्न इट, वी कैनॉट कट इट। तो परमात्मा का भी यही ये है। कब आवर character and the Paramatma ka character is the same. So we are the identical parts of Krishna, but we are small Krishnas. So qualitatively same, quantitatively different. सागर का एक बूंद क्वालिटेटिवली सेम एज सागर, सागर के जैसा ही है क्वालिटी में। क्वांटिटी में बूंद क्या है, सागर क्या है, वो अंतर है हमारे और परमात्मा के बीच। फर्दर, that fragmental portion, when liberated from the bodily entanglement, revives its original body, spiritual body in the spiritual sky, in a spiritual planet, and enjoys association with Supreme Lord. तो जो दैव भक्ति में है, अभी कृष्ण भक्ति में है, तो गुरु के आदेश से, भक्तों के संग से, मार्गदर्शन से हम सेवा करते रहेंगे, तो आध्यात्मिक लोक में प्रवेश निश्चित रूप में मिलेगा। इसी अध्याय में कृष्ण ने बताया है, पिछले कुछ अध्यायों में से हम पढ़ के आ रहे हैं। कृष्णा इज टेलिंग द डोर्स आर ओपन फॉर देम, एंड वहां वो आके क्या करेंगे, कृष्ण सेवा को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरह करेंगे अपने आध्यात्मिक शरीर पाके। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू लर्न conclusively from the 7th shloka of 15th chapter, and from here onwards little bit speed we can catch up, because now comes the reinforcement of whatever Krishna is telling. The individualistic concepts he has brought out, अब उस concepts को he is going to reinforce it by talking of many examples and situations. So thank you very much for joining me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. In all probability, tomorrow also we will be having a session at same time.